prior to this, in 2019, if you remember, Pelgram operation, false flag operation was done. And at that time, India, taking the excuse of this, abrogated 370 and 35A of the Constitution. Gentlemen, we are here to reiterate our support to the armed forces of Pakistan and the defense of Pakistan. Let me assure you that all veterans from all armed forces who are retired, we have retired from service, but believe me that we are always available to defend each and every inch of Pakistan. We reiterate our support that any time India threatens Pakistan, they will get a very, very befitting reply. And inshallah, on one order from the higher authorities, Pakistan Army Chief, we all will be there fighting along our armed forces on ground, in the air, and at the sea. And we want to give this message to the entire world that this time the India has threatened the very lives of Pakistanis by abrogating the Indus Water Treaty, which India cannot do unilaterally. You know it. But we are there. In fact, any time they go in for this adventure physically, they will get a befitting response and a strong, measured, befitting response. So we are here to stand together and show our solidarity to armed forces of Pakistan, to people of Pakistan, and to this Dharti Pakistan. Believe you me, whatever we are today, it is because of this country, Pakistan, and the armed forces of Pakistan. So till death, we pledge that we are going to stand by it and defend each and every inch of Pakistan. The Indians have done all this at a time when Pakistan was progressing economically, politically, and it is becoming a really progressive nation. Just to stall all this, the Indians have undertaken all this false flag operations, and believe you me, India, this is not the first time. During our service also we have seen the Indians have been doing lot of terrorism in Pakistan. It is not, it's not a story that I am telling you. It is a fact. In Balochistan and KPK and elsewhere also. So let it be very clear that hence on this will not be tolerated. Pakistan is on road to progress, prosperity, and we all veterans stand by it, and we inshallah will put in all our efforts to stabilize Pakistan and defeat all threats that emanate from India or elsewhere. Throughout Pakistan, and particularly in Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan. So this is what we would say. I'll just hand over to Marshal, please. शुक्रिया सर. मैं इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में सबसे पहले तो आपको पीएफ की तैयारी के मतलब बताऊंगा, और दूसरा फिर मैं जो पीएफ के वेटरन्स की जो जज्बा है उसको हाईलाइट करूंगा.
सबसे पहले तो तैयारी पे देखिए कि टेक्नोलॉजी और मैन पावर दो चीज़ें होती हैं किसी भी एयरफोर्स की, वो जो उसकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाती है ये कम करती है। टेक्नोलॉजी वाइज 2019 में पीएफ ने पूरी दुनिया को प्रूव कर दिया था कि वी आर मच अहेड ऑफ द इंडियंस। ठीक है जी। इन 2-3 सालों में पाकिस्तान एयरफोर्स ने और भी ज़्यादा तरक्की की है जहाँ तक कि टेक्नोलॉजी का दारोमदार है। इसके अलावा जो पीएफ की मैन पावर है वो इस कौम के सबसे बेहतरीन बच्चे हैं। ठीक है जी। और वो उनको पीएफ में इंतहाई मेहनत मुशक्क़त में डाला जाता है और वो जब बाहर निकलते हैं तो कुंदन बन के निकलते हैं ट्रेनिंग के ज़रिए। तो टेक्नोलॉजी और हमें ये एहसास है पीएफ को कि जब पूरी कौम हमारे पर इतने पैसे खर्च कर रही है, इतने महंगे महंगे जहाज़ लेके दे रही है, तो पीएफ का फ़र्ज़ है कि उनको सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो वो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी जो मैन पावर है ये सारी दुनिया मानती है। ये वही मैन पावर है जिसने इसराइल के जहाज़ शूट किए थे। ठीक है जी। तो वो अभी भी अमेरिकन के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं और ममालिक के साथ एक्सरसाइज करते हैं। वो सब के सब हमें जो ना एक्नॉलेज करते हैं। तो यहाँ तक टेक्नोलॉजी मैन पावर पीएफ की है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और टेक्नोलॉजी के लिहाज से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पीएफ इज़ हेड ऑफ द इंडियंस। ठीक है जी। और दूसरी बात जो है उनकी जो मोटिवेशन है ये हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है पूरी कौम का। जो इंडिया अगर किसी भी चीज़ में हमारा मुकाबला कर सकता है तो ये मोटिवेशन है, जो जज्बा है, इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो वो जो पीएफ की मैन पावर है इसके जज्बे की मैं आपको अक्कासी करता हूँ कि जो ही कोई छोटा सा ऐलान होता है तो पूरी मैन पावर जो है जो काम 6 घंटे में करती है वो 1 घंटे में करना शुरू कर देती है। ठीक है जी। तो ये है हमारी तैयारी। जो पीएफ वेटरन्स हैं हम लोग वहीं पे सर्व करके आए हैं, हमारे वही जज्बात हैं, हम अवेलेबल हैं, वी आर टेक्निकल पीपल। और हमारी जब भी ज़रूरत पड़ेगी एयरफोर्स को हमने ऑलरेडी बता दिया है, दे नो इट। कहीं भी हमारी ज़रूरत है हम वहाँ पहुँचेंगे और अपनी ड्यूटी करेंगे। बेशक अदना से अदना ड्यूटी हमें दीजिए, हम करेंगे। बाकी जो है ना फिर सवालों में जो हम देख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये सारा इधर और जो हमारा मकसद है यहाँ आने का वो ये है कि वी हैव टू रीअफर्म आवर सपोर्ट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, फॉर द पाकिस्तान आर्मी स्पेशली। हमारी जो आर्मी है वी आर रिप्रेजेंटिंग द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। ये मैं ऐसे जज्बात में नहीं कह रहा हूँ, आप चले जाएं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे। दिस इज़ द बेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। हमारे लोग इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स जीतते हैं, पेट्रोलिंग कॉम्पिटिशन्स, बाकी कॉम्पिटिशन्स। हमारे जो लोग हैं वो हर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में दे आर अहेड। यूएन के अंदर जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा है। सो उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितनी मोटिवेटेड हमारी आर्मी है और क्या क्या काम कर रहे हैं। हम लोग वेटरन ज़रूर हैं लेकिन जो मोटिवेशन है हमारी वो इतनी ज़्यादा है कि अगर अभी आप कहें हम में से किसी को भी, वी आर विलिंग एंड वी आर रेडी, एक्चुअली मेंटली वी आर रेडी कि कोई भी टास्क हमें आर्मी दे हम अभी करने को तैयार हैं। इतनी जान है हम में अभी भी, किसी किस्म का टास्क, मतलब कि निचले से लेवल से लेके ऊपर लेवल तक ये हमारी ड्यूटी है। इस कौम के लिए हमने 40-40 साल इस कौम की खिदमत की है और अभी टाइम है कि हम पे बैक करें। इसके बाद 1-2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो इंडियंस हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आज से नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अरसे से कर रहे हैं। आप शुरू करें गंगा हाईजैकिंग से, उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मकसद ये था कि टू कट ऑफ दी ओवर फ्लाइट्स टू देन ईस्ट पाकिस्तान। फिर आप आ जाए मुख्तलिफ और चीज़ों के ऊपर, मैं सिर्फ मोटे मोटी 2-3 इंसिडेंट का जिक्र करता हूँ। जब क्लिंटन ने आना था तो छत्तीस सिंहपुरा में मैसेकर हुआ सिखों का, 35
سکھ میرا خیال تھے, ان کا میسیکر ہوا, انہوں نے پاکستان پہ فوراً ڈال دیا. اب آپ سملیرٹی دیکھیں نا, ابھی ادھر وانس آ رہا ہے, ادھر کلنٹن آیا اور وہ انہوں نے ہم پہ میسیکر کا ملبہ ڈال دیا. لیکن جب انکوائری ہوئی ہے اور انڈین کورٹ نے ہی کہا کہ نہیں دس جو ایویڈنس ہے وہ بنایا ہوا ہے, اٹ از ناٹ کریکٹ, اور اس لیے اٹ واز پروون ان دی انڈین کورٹ کہ پاکستان ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. پھر آپ آ جائیں جو انڈین جو پارلیمنٹ ہے اس پہ اٹیک جو ہوا, اگین اٹ واز پروون بیانڈ ڈاؤٹ کہ جی یہ پاکستان نے نہیں کرایا, حالانکہ اس کی وجہ سے پوری اسکیلیشن ہو گئی تھی, ڈپلائمنٹ ہو گئی, ان کو بہانہ مل گیا. جو جموں اور کشمیر اسمبلی میں ہوا, اگین اٹ واز اے فالس فلیگ. یہ میں صرف آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو انڈین اپنی انکوائریز نے یہ فالس فلیگ قرار دیا ہے کہ جی یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. ابھی جو پلوامہ آپ جان